Assalamu alaikum and a very good evening. I am Hamna Jabeen and I am the new program coordinator at ETL Online and I will be moderating today's session. Before starting, let's talk about ETL. So, what ETL is? ETL stands for Empowerment Through Learning. Hamara mission is to bridge the gap between industry and academics. हम यूथ को हमारे यूथ को we provide hands-on experienced project-based learning and essential soft skills to land jobs confidently. हमारे पास एक powerhouse team है which consists of more than 40 plus international experienced industry experts who provide world-class mentorship to shape Pakistan's next generation of tech leaders. हमारे initiatives, let's look at them. We have our amazing community portal, which is a vibrant online community, जहाँ पर आप fellow industrial experts के साथ connect कर सकते हैं. You can ask them questions, you can seek guidance. Then we have our FYP support, which is the final year project advisory. Our experienced advisors help students turn their final year project into something impactful. हम अपने students को mentorship provide करते हैं, technical guidance देते हैं और industrial alignment देते हैं to ensure that their projects are practical and presentation ready. Then we have OPSC, Open Source Project Contribution, which is surprisingly not very common. We have the great Kamran Ahmed sir who provides training for open source contributions. ETL's open source experts help students gain real-world experience by guiding them to contribute to open source projects through mentorship and hands-on experience. अगर आप open source projects की बात करें तो a few example would be GitHub, Visual Studio Code, and Python. Python is a language which is an open source language. It is maintained by open source contributors. इसके अलावा ETL का अपना एक open source contribution है which is named as Spark. Do check it out. Then my personal favorite, I Rise, which stands for I Am Rising with Real Industry Skill Experience. It is a program designed to enable IT talent to rise from students to professional through a project-based online internship. बेसिकली हम इस प्रोग्राम के अंदर उन स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं लेकिन उनके पास 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं होता, हम उनको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं. And if you do well in this, you can land a job through it as well. Then we have Career Help, जहाँ पर we provide access tailored tech career advice from industry experts, connect with seasoned professionals, and gain valuable perspective on your journey. We connect you with industry experts, जिनसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. You can gain guidance from them. You can ask them questions regarding your projects and everything. Then we have mentorship, where we connect university students with experienced industry expert. ETL mentorship program connects university students with experienced industry professionals who guide them through career decisions, technical skills, and real-world projects to prepare them for success in the tech world. So let's talk about how you can access these initiatives. उसके लिए आपको हमारी website etlonline.org पे जाना होगा, where you will get the details of all our initiatives. इसके अलावा, in case you miss any of our webinars, हमारा YouTube channel is always available. Go to the YouTube channel, find your session, and you can see the recording of it. And if you have any questions, don't worry. Our portal is always accessible. You can head over to our portal, ask your questions, and we will soon get an industrial expert to connect with you. And apart from that, हमारे future webinars लेने के लिए and updated रहने के लिए join our socials, LinkedIn, Facebook, and Instagram. So moving on to our session. Tonight's session is Reimagining Software Development. We're going to explore how AI is transforming development from writing better code to building smarter apps. Today, we have with us a true industry leader, Dr. Muhammad Zahir, who is the Chief Technology Officer of Pitzel Technologies,
जिन्होंने AI powered web and mobile platforms का future shape किया है. He has leading many cutting edge projects and his expertise lies in combining AI, cloud computing and smart software architecture to build solutions that are not just scalable but also revolutionary. So if you're someone who wants to code smarter, not harder, this session is for you. I would request Sir Zahid to take over this session from here and present your screen. Thank you so much. Sure, thank you very much. Thank you for the introduction. You're welcome, sir. Um, First of all, when I was preparing this session, so मुझे जो बताया गया था that is session for the students, but I see there are a lot of uh, professionals are there in the session as well. But since the preparation is for the student, अगर आपको कोई थोड़ी सी disappointment हो उस लिहाज से, because when you talk about students तो आपको थोड़ा सा एक gap feel होता है. तो but I would highly recommend जो professionals भी हैं session के अंदर, if they have, I guess they have also a lot of experience developing software, but I would go for the students first. Let me share my screen. Let me know if you can see the screen. Um, okay. Apologies, I will need to rejoin the meeting. Just give me a minute. No problem, sir. Take your time. Okay, so please confirm if you can see my screen. Yes, sir. It is visible. All right. So the topic for this session is the effective use of AI in software development. And as I mentioned in the slide as well, so I thought the target is for the students. So my audience is students, and the focus of this session is how to practically use AI tools in modern development workflows. And we'll be covering concepts, some tools, the benefits, some ethics that are associated with the use of AI. और हम एक case study को if time permits would like के हम उसको go through भी करेंगे. And as mentioned, so मेरा introduction तो उन्होंने already करवा दिया हुआ है. So I'm working as a CTO in Bitsol Technologies with past 10 years. And overall, I have 16 years of experience in software development. So let me move forward to the introduction. So why AI in software development? So that the AI help us in increasing with the increasing complexity, and the demand is the shorter release cycle. With the going forward day by day, जो ask है, the ask and complexity is getting increased day by day, and डिमांड फॉर प्रोडक्टिविटी और कोड क्वालिटी वो भी इंक्रीज हो रही है, एंड सो दैट एआई कैन हेल्प अस ऑटोमेट ऑप्टिमाइज एंड एक्सेलरेट डेवलपमेंट. मैं क्विकली कोशिश करूँगा स्लाइड्स को कवर करूँ. देयर इज़ नॉट लॉट ऑफ स्लाइड्स, इट्स जस्ट 10 स्लाइड्स. देन वुड लाइक कि हम कुछ प्रैक्टिकली भी इसको इन एक्शन देखें. व्हाट आर द की एरियाज जहाँ पे हमें एआई हेल्प करती है in software development? So one is the code generation, and there are tools like Gemini Code Assist, GitHub Copilot, some other tools that can help us in code generation. Then the bug detection and debugging. यहाँ पे भी
कोड रिव्यूज़ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे कोड गुरु, कोड रैबिट, इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स हैं दैट कैन हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग वेयर आर द इश्यूज। एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से अगर बात की जाए, इन अ कंप्लीट SDLC, तो टेस्टिंग के अंदर ऑटोमेटेड टेस्टिंग है और उसके अंदर कोडियम है, टेस्टिम है, प्ले राइट है। देर आर लॉट ऑफ टूल्स दैट कैन हेल्प अस टू टेस्ट व्हाट वी आर बिल्डिंग। और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ टूल्स हैं, क्लिकअप, जिरा, इस तरह के और कुछ टूल्स हैं, उनको आप थ्रू AI मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, राइट फ्रॉम द फर्स्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहाँ से हम लोग AI को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, उन रिक्वायरमेंट्स को कन्वर्ट करना इनटू अ यूज़ केस, और उसके बाद उसको यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन। सो उसके लिए भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। GPT इज़ वन ऑफ देम, आई गेस। GPT इज़ उसके अलावा भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसको आप हेल्प आउट करते हैं। कुछ पॉपुलर टूल्स, जस्ट मेंशनिंग द नेम ऑफ दोज टूल्स, आई गेस काफ़ी सारे टूल्स का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, जिसमें से गिटहब कोपायलट है फॉर कोड सजेशंस एंड कोड कंप्लीशंस, कोडियम है फॉर टेस्टिंग, चैट GPT इस Excuse me, जनरल sir. पर्पस। श्योर। Just a second. I'm so sorry to interrupt you. Actually, अगर आप स्लाइड शेयर कर देते, स्लाइड शो मोड में ले जाते, so it would be more visible to the students. सॉरी, अवेलेबल विजिबल है? Yes, visible है. ओके, Thank you so much. apologies, I thought I shared the slide. Alright, so the tools are Copilot, Codium, GPT, Testium, Cursor। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, जस्ट मैंने उन टूल्स का नाम मेंशन किया जो काफ़ी पॉपुलर हैं और आई गेस कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं पहले से। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? हम AI को यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं? उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ फास्टर कोडिंग विद फ्यू एरर्स, एंड देन it also help us for the junior devs or for students as well to learn and enhance their learning, because they can play around in different tools, technologies, different languages, even एक single problem को solve करने के लिए, even if they don't know about, like if they are working with the Python, they don't know about JavaScript, they can do that. If they don't know about .NET, they want to experiment something, वो उसको कर सकते हैं। So it expand, enhance their learning, and also the code quality and the documentations are getting improved with the help of AI, because these are one of the tedious tasks that is in the software development, maintaining the documentation. उसके बाद द बग ट्रैकिंग एंड लास्ट ये टेस्ट केस राइटिंग्स है, और टाइम टू डिप्लॉय दोज फीचर्स। सो एवरीथिंग, ये कुछ एरियाज़ हैं। अगेन इसके अंदर देर आर लॉट ऑफ सर्टेन सब डोमेन्स जो जिसके अंदर अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर के लिए दैट इज़ डिज़ाइनिंग, जिसके अंदर हम एक UI डिज़ाइनिंग करते हैं। उसके बाद उनकी कोड रिव्यूज़ हैं, डिप्लॉयमेंट्स हैं, कुछ सब डोमेन्स हैं इन सारों की। सो ये मेजर कुछ एरियाज़ हैं जिनको यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद कुछ रिस्क भी हैं। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपके पास AI है सो यू कैन डू नो रॉन्ग, बट there are certain chances, so you have to be careful about those. So some common risk or challenges जो हैं उसके अंदर, so AI can generate bugs because there is a biasness in the training data, क्योंकि every AI they depend upon what sort of data they trained on. So if अगर डाटा के अंदर कुछ issues हैं, so AI can certainly generate those errors in the output as well. And there is a issue with the hallucination. So hallucination is if जैसे आप लोग स्टडी के दौरान कुछ असाइनमेंट्स करते हैं, और जब आप कुछ असाइनमेंट करने से पहले सोच रहे होते हैं कि मैंने इस असाइनमेंट को इस तरीके से करना है, मैं इसके लिए रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करूँगा, मैं इसके लिए नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करूँगा, मैं इसके लिए लैंग्वेज ये यूज़ करूँगा। अगर आप AI को ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो AI के पास डिफरेंट तरह का नॉलेज है, इसके पास पाइथन, जावास्क्रिप्ट, .NET, वट एवर लैंग्वेज जो एग्जिस्ट करती है,
इट कैन जनरेट वन टाइम, इट कैन जनरेट आउटपुट इन सिंगल लैंग्वेज, दूसरी दफ़ा किसी और लैंग्वेज में दे देगा, कभी सीक्वल जनरेट कर देगा, कभी नो सीक्वल जनरेट कर देगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दोज एस्पेक्ट्स. उसके बाद द अदर रिस्क और चैलेंज इज़ ओवर रिलायंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग. बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग द वन जो कि एआई से हेल्प ले रहा है, यू हैव टू बी स्टे ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव विद द हेल्प ऑफ द एआई. अगेन ऐसे वैसे पहले मैंने मेंशन किया, एआई के पास काफ़ी नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज की जो वैलिडेशन है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन जो कि उससे हेल्प ले रहा है. तो आपके लिए उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मैटर करती है. उसके बाद डाटा सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस है. इनिशियली काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस रहा कि कुछ लोग जो थे ब्लाइंडली दे पुट ऑन देयर सेंसिटिव डाटा. स्टूडेंट्स के लिए शायद उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट व्हेन यू बिकम प्रोफेशनल, सो आपके पास क्लाइंट्स का डाटा है, कुछ सीक्रेट कीज़ होती हैं, कुछ वो आप ब्लाइंडली यू जस्ट कॉपी पेस्टेड इनटू द एआई टूल्स टू आस्क सर्टेन हेल्प. तो उसके उससे जो है काफ़ी ज़्यादा डाटा सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी आ सकते हैं. उसके बाद बाइसनेस का ऑलरेडी मैंने मेंशन किया स्टार्ट के अंदर ही. और लास्ट जो चीज़ है वो है ह्यूमन रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी. इवेंचुअली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन जो कि उस टूल को यूज़ कर रहा है. एथिकल कंसिड्रेशन व्हेन यू आर यूजिंग एआई, इसके अंदर भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर स्टिल दे आर डिबेट्स गोइंग ऑन, द यूज़ ऑफ एआई इन द एकेडेमिया. जिसके क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट्स आर दे आर मिस यूजिंग द पावर ऑफ एआई in generating their assignments or their FYPs or stuff like that. Instead of getting help from it, they are actually fully relying on those tools. So the ethical consideration should be there, because when you generate some code for the help of AI, so you need to be asking who owns this AI generated code, and how do you ensure fairness और ट्रांसपेरेंसी को आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे. तो लास्ट के ऊपर जैसे मेंशन है, अवॉइड मिस यूज एंड प्लेजरिज्म. सो इज अ लॉट ऑफ प्लेजरिज्म गोइंग ऑन विद द यूज़ ऑफ एआई. सो बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज जब आप इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे तो आपकी अपनी लर्निंग और आपकी अपनी जो एफर्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी. सो यू नीड एज जो कि पहले मेंशन किया गया कि आपने ऑन टॉप रहना है, और ऑन टॉप रहने के लिए आपकी अपनी लर्निंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है. एआई इज़ देयर टू हेल्प यू आउट, but you should not 100% rely on AI. अभी वुड लाइक कि हम एक छोटी सी केस स्टडी जिसको हम एग्जीक्यूट करें विद हाउ क्यू, और देखें कि एआई रियल वर्ल्ड में किस तरीके से बिहेव करती है. बिफोर गोइंग इनटू दैट, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ कोई पूछना चाह रहा हूँ, कोई बात करना चाह रहे हैं उस पर. Yes, sir. There's a question in chat. And Irfan, can you please unmute your mic and ask your question? Okay, I'll ask on your behalf. He's asking, he is a full stack developer. Which AI tool is best for coding? बेस्ट को डिटरमिन करना, दैट डिपेंड्स के व्हाट यू वांट टू अचीव. फुल स्टैक में फ्रंट एंड किस में बनाना चाह रहे हैं, बैक एंड किसके अंदर बनाना चाह रहे हैं, व्हाट टेक्नोलॉजी दैट यू वांट टू यूज़. तो उससे जो है वो टूल्स वेरी करते रहेंगे. तो आपको पहले अपना स्टैक डिफाइन करना है. देर आर लॉट ऑफ टूल्स जो फुल स्टैक में हेल्प कर रहे हैं. देर इज़ लवेबल, वी ज़ीरो, बोल्ड. देर आर लॉट ऑफ टूल्स दैट आर अवेलेबल, बट यू नीड टू लाइक आपको अपना स्टैक के ऊपर डिफाइन करना होगा कि आपके लिए कौन सा टूल बेस्ट आउटपुट जनरेट कर रहा है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और
Oh, sir, right now we don't. If we have, we'll do it at the end of the session. Continue करें. ओके, सो लाइव केस स्टडी में मैंने एक बहुत ही छोटा सा एक टूल है, आई गेस स्प्लिट वाइज, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स ने भी इवन सुना होगा। स्प्लिट वाइज जो टूल है दैट इट्स आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर 3-4 लोगों का ग्रुप बन जाता है और वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं। सम टाइम कैफ़े पे गए, एक बंदे ने पेमेंट की, कभी कहीं और गए, दूसरे बंदे ने पेमेंट की, तो यू हैव टू स्प्लिट इट अमंग डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स। तो उसमें होता यह है कि आप एक एंट्री अमाउंट एंटर करते हैं एंड यू एंटर के आपके साथ इस वक्त कौन कौन से लोग हैं, और वो अमाउंट उनके साथ स्प्लिट हो जाती है इक्वली। एंड व्हेन दे लॉग बैक इन, तो उन्हें वो नज़र आ रहा होता है कि हाउ मच अमाउंट दे ओ टू पर्सन ए और पर्सन बी और पर्सन एक्स। तो एक छोटा सा टूल है, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि हम एआई से किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड करने के लिए मैंने कुछ टूल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसके अंदर हम थोड़ा यूज़ करेंगे कोपायलट को भी, सॉरी नॉट कोपायलट, वी विल यूज़ कर्सर, विल यूज़ लवेबल, इट्स अ फुल स्टैक डेवलपमेंट टूल। मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन क्विकली प्रोटोटाइप यूआई with the help of these tools lovable, and we will try to generate a db schema and some backend code with the help of cursor. Or the key highlight is the assistance, the AI assistance. It's not a replacement. So you should always keep that in mind. So this is a tool lovable. तो हमारे पास requirement थी, we need to build a tool like splitwise. So थोड़ा सा हम आइडिया को expand करेंगे कि what is splitwise, और उसके लिए मैं GPT के से I would ask to expand the idea. I would like to build a tool like splitwise to split payment among group. Okay, so this go you can expand it more, but I guess for this session this is sufficient. So I would put in this prompt and I would ask to generate the UI. जब मीन टाइम इट्स जनरेटिंग द यूआई, मैं एआई के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट एआई इज़ एट दिस स्टेज एट द मोमेंट। सो इट्स ऑल स्टार्ट विद द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इट्स अ सबसेट ऑफ द एआई, जिसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन किया गया, और बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग उन वो कुछ चीज़ें आउटपुट, कुछ प्रिडिक्शंस दे वो प्रोवाइड करते थे। जैसे यू प्रोवाइड अ सेट ऑफ इमेजेस जिसके अंदर यू लेबल इट इट्स अ कैट और डॉग, एंड देन यू प्रोवाइड एन अदर इमेज जो विदाउट लेबल थी, एंड यू आस्क एआई और मशीन लर्निंग मॉडल टू डिटरमिन वेदर इट्स अ कैट और डॉग। तो बेस्ड ऑन देयर ट्रेनिंग they can predict whether it's cat or dog. उसके बाद there is a revolution that came along, it's known as generative AI. So what generative AI is, उसके with the help of generative AI आपके लिए, एक ह्यूमन के लिए उन मॉडल से कम्युनिकेट करना इजी हुआ। हम प्लेन इंग्लिश के अंदर या प्लेन उर्दू में विद वॉइस विद टेक्स्ट वी कैन कम्युनिकेट विद दोज मॉडल्स। और जनरली उसके लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs जो थे वो यूज़ होना स्टार्ट हुए। और देन एट दिस स्टेज अभी हमारे पास जो है देर इज़ एन एजेंटिक एआई जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो व्हाट एजेंटिक एआई इज़, it can the AI can take decision autonomously based on the user requirement, बिकॉज उसके पास काफ़ी सारा डाटा है, काफ़ी सारी इनपुट है। जैसे अभी हमने यहाँ पे भी काफ़ी सारी इनपुट दी है, मल्टीपल इनपुट्स हैं। हमने उसे कहा कि यूआई भी डिज़ाइन करना है उसे, हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बता दी हैं। सो इट कैन टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल टू इट।
So it's at this stage, this is the major breakthrough in the AI. Uh, the world is not stopping here. काफ़ी सारी चीज़ें अभी आ रही हैं, लेकिन for now I guess this is considerably a huge success in the AI industry. मैं थोड़ा सा ए इस प्रॉम्प्ट को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने उसे कहा कि हमें एक यूआई एलिमेंट्स डिज़ाइन करना है, मॉडर्न एंड यूज़र फ्रेंडली, और जैसे स्प्लिट वाइज की मैंने एक सवाल दी कि वी नीड टू डिवाइड आवर एक्सपेंसेस बिटवीन अ ग्रुप। तो उसके ऊपर इट्स जनरेटिंग लॉट ऑफ डिफरेंट फाइल्स। जैसे एक सवाल भी किया कि फुल स्टैक टूल, सो दिस इज़ वन ऑफ द फुल स्टैक टूल जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फुल स्टैक टूल्स हैं जो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं। और जो स्टैक है इसका वो है रिएक्ट जेएस, और बैकएंड जो है वो ये यूज़ करते हैं, इट्स नो रिलेशनल डीप सॉरी रिलेशन डेटाबेस, सुपरबेस के नाम से है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्रॉम्प्ट मेरे जो दिस टूल है इसने इट बिल्ड अप दिस द होल आइडिया ऑफ अ सॉफ्टवेयर जो कि स्प्लिट वाइज का काइंड ऑफ क्लोन कह लें, and it generated a public facing website, and we as we can see there is a login and there is a getting started जो कि इसकी एक application side भी है, means कि after this public site you are asking user to log in, और login के बाद अभी इसने जो पब्लिक साइट जनरेट की है हम इसे बताएंगे कि इसका लॉगिन इंटरफेस भी जनरेट कर दे, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, हो हम कैसे अपने इनपुट करेंगे एक्सपेंसेस को और उसकी आउटपुट किस तरीके से जनरेट होगी। So again, we just need to ask, we need to provide a prompt to this tool, add login gen- तो अभी क्योंकि पब्लिक साइट है मैंने उसे कहा है कि इसका लॉगिन इंटरफेस जनरेट करे, और यूज़र नेम पासवर्ड बेस ईमेल पासवर्ड बेस लॉगिन होगा। इट विल जनरेट डेटाबेस टेबल्स यूज़र एंड फॉर यूज़र्स एंड एक्सपेंसेस, और उसका कुछ बैकएंड भी जनरेट करेगा। सिंस टाइम इज़ नॉट परमिटिंग टू गो बियॉन्ड, तो मैं आपको इसको, अगर आपके पास फुल स्टैक टूल्स नहीं भी हैं, यू आर जस्ट वर्किंग विद द आईडीई, जैसे मैंने कर्सर की मिसाल दी, इसके अलावा आपके पास अ, जो है वो को पायलट है, गिटहब को पायलट जो कि विजुअल स्टूडियो कोड या और डिफरेंट कोड एडिटर्स के साथ काम करता है, हम इसके थ्रू भी ये सारे का सारा काम कर सकते हैं। तो आई वुड टेक द सेम प्रॉम्प्ट जो कि मैंने यहाँ पे दी थी कि मैं एक टूल बिल्ड करना चाह रहा हूँ और मुझे उसका डीबी स्कीमा जनरेट करना है। अब जैसे पहले कहा कि जो ह्यूमन है दे शुड नो अबाउट व्हाट दे वांट टू बिल्ड, एआई इज़ असिस्टिंग मी। मैंने टूल को कहा कि मुझे ये चीज़ बिल्ड करनी है बट द आइडिया वाज माइन, एंड व्हाट द आउटपुट शुड बी वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इफ़ समथिंग जो एआई जनरेट करेगी वो मेरी रिक्वायरमेंट से अलाइन नहीं करता, आई कैन आस्क एआई अगेन टू गो बैक एंड मॉडिफाई। सो humans are primarily in the driving seat, और आपको being a student, being a professional, हमें अपने आप को empower करना है on the requirement side, on the learning side, क्योंकि हम फिर इन चीज़ों को evaluate कर सकें जो AI जनरेट कर रही है। सो आई
So सेम सिमिलर इंटरफेस जो गिटहब को पायलट का भी है. आई आस्क टू I provided my requirement and it's generating the SQL schema for me. It's a very basic schema जिसके अंदर it generated user, it generated a group member, expenses and their split और उसकी settlement है whether this expense is splitted or not. I can ask even to add authentication. ओके. अगेन उसने पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे यूज़र था, तो बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट उसके अंदर उसी में पासवर्ड की फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है क्योंकि इनिशियली इट वाज विदाउट पासवर्ड. सो we can expand it as much as we want, or based on this schema we can ask to generate a backend code, a working backend code. Again, it's very raw, because again time don't not permit at this time कि किसी हम framework या tool के ऊपर जाएं. It's very basic nest node application जिसके अंदर you are registered, there is a login, there is groups जो आप create करेंगे. you expenses आप ऐड कर सकते हैं, उनके expenses को you want to see. और आप इसके बाद जैसे इट आस्किंग मी के यू वांट टू कंप्लीट दिस स्ट्रक्चर जिसके अंदर भी सेटलमेंट या मेंबरशिप्स के चीज़ें नहीं हैं. और इवन जैसे मैंने टूल यूज़ किया था टू जनरेट द फ्रंट एंड, आई कैन आस्क गिटहब को पायलट और कर्सर टू जनरेट द फ्रंट एंड कोड फॉर मी एज वेल. So what is happening all this AI with this AI is I'm just using it. I'm providing prompts in very simple plain English और उन prompts के ऊपर it's acting, and you can see there is a agent that is being used at this time. So agents क्या कर रहे हैं ये आप देखें, multi steps हैं. इट्स आस्किंग मी आपको ये लाइब्रेरीज चाहिए होंगी अपनी एप्लीकेशन में. दीज आर द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यू नीड टू पुट इन, दीज आर द फाइल्स दैट यू नीड टू क्रिएट इन, एंड आई कैन आस्क AI टू इवन क्रिएट दोज फाइल्स फॉर मी. तो मेरे जो फोल्डर आई कैन प्रोवाइड हिम द फोल्डर, उसके अंदर इस वाला कुछ फाइल भी क्रिएट हो सकती हैं. So again, the all the emphasis is on the human side, and what AI is doing is assisting me. It's writing code for me. I'm evaluating. I'm reading all these lines. What is AI is doing? I can see there is no uh, exception handling is there, so I can ask to add exception handling to the controllers. So again, it's asking me. So मैंने रिव्यू किया, मैंने फाइंड आउट किया, और मैं एआई से कह रहा हूँ कि वो जनरेट करे, उसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐड करे. सो नाउ यू कैन सी ये ट्राई कैच इसके अंदर ऐड अप कर रहा है. अब ये नॉलेज जो था, दिस वाज माय नॉलेज. मैंने आइडेंटिफाई किया एंड मैंने एआई से कहा कि इसको ईज आउट करे, इसको हेल्प आउट करे, और एआई उसके अंदर हेल्प कर रही है. तो जैसे हमने रिस्क और चैलेंजेस के अंदर देखा था, टू मच रिलायंस ऑन द एआई, और आप अपने अगर नॉलेज के ऊपर काम नहीं करेंगे, दैट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर यू इन द एंड. तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको एक वर्किंग एग्जांपल नहीं दे सके. आई टच्ड पीसेस, आई जनरेटेड द डीबी स्कीमा, आई जनरेटेड अ बैकएंड कोड, आई जनरेटेड अ यूआई with the help of tool, just for the demo purpose.
I'm moving toward the summary is how you can effectively use AI. You need to break your prompts into small, very clear, concise commands. Review, always review and or edit the AI generated code, that whatever AI is generating, review it and edit based on your needs. Use AI for patterns, not logics. The logic is like business logic is yours. You can ask AI to write that logic for you, but the logic is just not 100% throw it out to AI, whatever AI is building, you are okay with that. और जो भी कुछ है, जो आउटपुट्स हैं, इट शुड बी ह्यूमन रिव्यूड. सो इस सारे सेशन की स्टूडेंट फ्रेंडली आउटकम जो है वो ये है कि we build and deploy small real world applications with the AI very rapidly, very quickly. AI assisted workflows जिसके अंदर UI build करना, backend generate करना, DB schemas generate करना, database के अंदर कोड को deploy करवाना, वो सारे का सारा it's very rapid. And you, being a student, you can gain confidence with the help of AI because it's acting as a your as a co-developer with you. Or again, last may, but that's not just the final output, not the least output, is you can impress your whenever you go out और आप इंडस्ट्री में जाते हैं, you can impress recruiters with practical experience कि मैंने I built this application, I built this application, and you can justify कि in which parts AI assisted you और कहाँ पे आपने खुद जो है वो उसको cover up किया है. So before going to final Q&A is AI is augmentation, not replacement. So it's not replacing software developers. It's helping them out. So and it's helping them out writing softwares in a very at a very rapid speed. So and time to deliver मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है. यू आर वेरी रैपिडली shipping softwares out, and those softwares are with very better quality, or the output is also very good. ऑलवेज चूज टूल्स जो कि आपके लर्निंग स्टाइल को मैच करते हैं. कुछ टूल्स हमने 3 टूल्स को देखा. चैट जीपीटी को इन दिस वर्कशॉप हमने कर्सर को देखा. कर्सर इज़ एन आईडीई. और हमने लवेबल एक टूल को देखा. इसके अलावा देयर आर टन ऑफ टूल्स दैट आर अवेलेबल. सो यू नीड टू पिक टूल्स जो कि आपके लर्निंग स्टाइल को मैच करते हैं. And practice building mini projects with AI just to understand, just to explore the capabilities, and just to explore your own thought process as well. So always go back and practice those mini projects with the AI, and always stay curious, keep experimenting, because now experimentation karna is very easy. uh, Without AI, even if you have to develop a small application like this that we just built splitwise, it take weeks to even to practice के किस तरीके से ये काम करती है. और now with the AI you can experiment very quickly. Even within 1 hour you can build a tool like this, even if you are smart enough to 1 hour भी शायद ज़्यादा होगा. तो एक्सपेरिमेंटेशन करना काफ़ी आसान हो गया है. तो इन्हांस योर लर्निंग, जो आप स्टूडेंट आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सीखते हैं, go back and do your own experiments and see के how similar concepts या उससे मिलती जुलती चीज़ें डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर किस तरीके से काम करती हैं, उसके ऊपर टूल्स किस तरीके से एक बने हुए हैं, और ताकि आपका जो अपना एक कॉन्सेप्ट है वो भी ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्ड होगा. So that is all from me at this point. अगर आपके पास कोई further questions हैं तो I can answer those. Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम. Yeah, I'm good, alhamdulillah.
सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन करूंगा आपके साथ. माय नेम इज़ इरफानुल्लाह. आई एम फ्रॉम पेशावर एंड currently working in Islamabad. I have 3 year experience as Drupal full stack developer. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि विच टूल बेस्ट फॉर कोडिंग पर्पस. उसके साथ हम Drupal CMS भी यूज़ करते हैं, तो किस तरह से आइडियली और किस तरह उसको फ्रॉम जनरेट करें ताकि हम उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करें. ठीक है। मेरे ख्याल से एक चीज़ जो मैंने शुरू में मेंशन इस एक्सप्लिसिटली नहीं की, और इट्स अ कॉमन नॉन फ्रेज के थिंक ऑफ एआई एज अ जूनियर डेवलपर who has a brilliant mind and has a knowledge of lot of things, जिसके पास पाइथन, PHP, ड्रूपल, काफ़ी सारा नॉलेज है। बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ प्रोफेशनल, हमारा काम यह है कि हमने उसे गाइड करना है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। अगर मैं उसे प्रॉपर गाइड नहीं करूँगा एआई को, तो एआई में जैसे हमने रिस्क और चैलेंजेस के अंदर देखा, इट कैन हेलुसिनेट, इट कैन जनरेट बग्स। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि एडिटर्स के अंदर देर इज़ 2 और 3 जो कि इस टाइम टॉप पे जा रहे हैं। एक कर्सर है, इट्स अ एआई बेस्ड आईडीई। इसके अलावा गिटहब कोपायलट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली विंडसर्फ और टैब 9, ये भी टूल्स हैं जो कि आपको कोडिंग के अंदर हेल्प करते हैं विद एआई। तो इस इन चारों में से यू कैन एक्सपेरिमेंट कि आपके प्रोजेक्ट के लिए या जो टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हैं कौन सा आपको ज़्यादा हेल्प आउट करता है। अगेन, एआई जेनरिक है, आपको उसे थोड़ा सा गाइड करना होगा अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से, तो आप उससे अच्छी आउटपुट दे सकेंगे। थैंक यू सर. सर जो आपने टूल बताया ये हमने VS कोड में इंस्टॉल करना होगा. कर्सर इटसेल्फ आईडीई है। जो गिटहब कोपायलट है वो आपको वीएस कोड के अंदर इंस्टॉल करना होगा। विंडसर्फ भी एक आईडीई है, लेकिन टैब 9 जो है वो आप को पायलट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो 2 एक्सटेंशंस हैं को पायलट। सिमिलरली जेमिनाई कोड असिस्ट भी है, एक एक्सटेंशन है जो आप वीएस कोड के अंदर डाल सकते हैं। तो जेमिनाई कोड असिस्ट, गिटहब को पायलट, टैब 9, इनको आप वीएस कोड से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पूरा एडिटर चाहते हैं जैसे कर्सर है, वो आईडी पूरा एआई के थ्रू, इट्स अ क्लोन ऑफ वीएस कोड, लेकिन वो आईडी पूरा कंपैटिबल है एआई के साथ विद एवरी एस्पेक्ट जो उनका है वो उन्होंने एआई के अंदर उसको यूज़ किया हुआ है। ओके सर, थैंक यू. सर आई हैव वन क्वेश्चन. श्योर। अच्छा सर, आपने सेशन करवाया एआई के ऊपर, वेरी गुड, मतलब मजा आया देख के. अच्छा, मेरे क्वेश्चन है, मोस्टली यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं. कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ फाइनल फाइनल सेमेस्टर में हैं. तो अगर किसी फ्रेशर ने या किसी ने स्टार्ट करना हो एआई के ऊपर, तो आपके पास कोई रोड मैप है जहाँ से वो स्टार्ट कर सके? अब देखें, मोस्टली टर्म्स चल रही हैं, जनरेटिव एआई, कॉमन कॉमन एआई, नैरो एआई, स्प्लिट एआई, डिफरेंट किस्म के मॉडल हैं. इसमें इसमें एलएलएम आ रहा है, फलानी चीज़ आ रही है, फलानी चीज़ आ रही है. तो एक नए हम्म। बच्चे के लिए वो चीज़ें सारी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है. तो अब एआई के अंदर सारी जो गेम है वो है प्रॉम्प्ट की. अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाती है तो आप मास्टर हो, चीता हो एक किस्म के. लेकिन कोई रोड मैप आप सजेस्ट कर सकते हैं कि जिसमें एक स्टूडेंट ने अगर एआई के ऊपर स्टार्ट करना है उसको, तो उसको क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करनी चाहिए, मतलब सीखने के लिए एआई को? कोई फिक्स रोड मैप नहीं होता। जैसे आपने कहा कि थिंग्स आर इवॉल्विंग, और एट दिस एरा और दिस टाइम जो एवोल्यूशन है वो बहुत रैपिड स्पीड के अंदर है। तो आपको, जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है एटीएल का, इस तरह के और प्लेटफॉर्म भी हैं, दे आर गाइडिंग स्टूडेंट्स के उन्हें किस तरह से इंडस्ट्री में इन होना है, द पाथ, कौन सा पाथ जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आपने सही पॉइंट आउट किया, देर इज़ लॉट ऑफ गोइंग ऑन, बहुत सारे बज़वर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए, किससे फेमिलियरिटी होनी चाहिए। एंड यू आर आल्सो राइट कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द कोर स्ट्रेंथ, कोर स्किल जो कि इस वक्त किसी भी एआई टूल से अगर आपने अच्छी आउटपुट लेनी है, यू हैव टू मास्टर द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
तो दैट्स वन जो कि आपको डेफिनेटली सीखनी चाहिए। उसके भी काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और जिस डोमेन के अंदर आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाह रहे हैं, आप डाटा साइंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप देखें कि कौन से टूल्स आपको हेल्प आउट करेंगे उस डोमेन के अंदर। पहले आपको डोमेन जो है यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप कौन सी डोमेन पिक करना चाह रहे हैं, और देन आपको टूल्स कौन से उसके अंदर हेल्प आउट करेंगे। क्योंकि अदरवाइज़ इफ़ यू बिकम स्टे कि मैंने कुछ भी आ जाए तो मैं कर लूँगा, और कोई सिंगल डोमेन पिक नहीं करते, तो आपके लिए चैलेंज होता जाएगा किसी एक फिक्स टूल को ग्रैस्प करने के लिए। फर्स्ट पिक डोमेन, देन पिक टूल जो उसमें आपको हेल्प आउट करता है, और उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ को बिल्ड करें। ठीक है, थैंक यू। I, sir, I have one question. जी सर। सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन था कि बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी हो सकती है कि लॉजिक बंदा बिल्ड करे ज्यादा से ज्यादा अच्छी लॉजिक अच्छी लॉजिक लॉजिक बिल्ड। बिल्ड, यस, अच्छी लॉजिक बिल्ड करने के लिए हमें भी जब इफ व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, तो यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस बाय हैंड। आपको खुद से आप लिखें कोई एक प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन, और उससे जो कुछ आप सीखेंगे वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि इन विद द हेल्प ऑफ एआई हमारे लिए ईज़ क्या है, कि मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखना है, मुझे एक प्रॉब्लम है, लेट्स से आई नीड टू सी के बाइनरी ट्री, या बाइनरी सर्चिंग कैसे काम करती है, या सॉर्टिंग एल्गोरिदम, मुझे कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। मुझे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम को समझना है कि वो किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए मैं एआई के पास जाऊंगा, एंड आई आस्क के आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, एक्सप्लेन मी इन स्टेप बाय स्टेप। जो भी कोड लिखा गया है, आपके पास कोड है तो आप कोड उसे प्रोवाइड करें, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। देन एक्सपेरिमेंट और डू इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। अगर आप उस चीज़ को खुद अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और देन इफ़ यू हैव एनकाउंटर अगेन दैट प्रॉब्लम, तो आपको फिर दोबारा से वो स्ट्रगल जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। तो इन टूल्स की वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा लर्निंग का, और लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। थैंक यू सर। यस नवीद, आई गेस योर हैंड इज रेज्ड। सर नवीद, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, वो हो गया था मेरा, हैंड रेस हुआ दोबारा, कर दिया मैंने इसको। चलें ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ये बहुत कॉमन पैटर्न हम देखते हैं कि अब जो लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। बट उसकी वजह से बेशक इफेक्टिव यूज़ के बाद भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत कम करता जा रहा है फ्रेशर्स के अंदर। तो हम किस तरह एआई को यूज़ करें कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कम ना हो, लेकिन हम उसे इफेक्टिवली यूज़ भी कर पाए? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन भी किया था कि एथिकल, देयर आर सम एथिक्स इन्वॉल्व एज वेल, ख़ास तौर पे व्हेन यू आर स्टूडेंट, इवन इफ़ यू आर प्रोफेशनल्स, तो आपको इन एथिकल कंसिडरेशंस का कुछ ना कुछ ख्याल रखना पड़ता है। प्रैक्टिकली, या जो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम को खुद से सोचने, क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल्स हैं वो कम होती जा रही हैं, this is again a worrying sign for human as well, because you even you want to stay ahead of AI, तो आपके अंदर इन स्किल्स को बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन स्किल्स को अपने अंदर बिल्ड नहीं करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग को अपने आप को बिल्ड नहीं करेंगे, इनोवेशंस को अपने अंदर बिल्ड नहीं करेंगे, तो फिर आपकी जॉब जो है इट कैन इजीली बी रिप्लेस्ड विद द एआई। सो यू नीड टू स्टे ऑन टॉप के, मैंने जैसे अभी कोड जनरेशन के दौरान भी कहा कि मैंने एआई से कहा कि जनरेट दिस,
and it generated a piece of code, then I need to stay ahead of the AI and I reviewed that code. मैंने उसमें से देखा कि अच्छा ये चीज़ मिस है, ये चीज़ मिस है, add that. इफ़ मैं उस चीज़ की अगर केयर नहीं करूँगा एंड आई जस्ट से कि एआई ने कोड जनरेट किया, इट्स वर्किंग एंड इज़ गुड, जस्ट पब्लिश इट, और बाद में जाके कोई एरर आता है, सो एवरीवन विल ब्लेम मी, द कंपनी विल ब्लेम मी, इट्स नॉट एआई जो कि जिसको कोई ब्लेम करेगा, बिकॉज आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ वट एवर आई एम जनरेटिंग थ्रू एआई. तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर काम करना है. एआई अगर कोड जिससे आप एआई से हेल्प ले भी रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एआई क्या कर रही है. एवरी लाइन जो एआई ने लिखी है, गो थ्रू इट. इवन इफ़ यू आर बिगिनर, गो थ्रू एवरी लाइन जो एआई ने जनरेट की है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका पर्पस क्या है, और उसको अपने लिए नेक्स्ट टाइम उसको अपनी लर्निंग के अंदर शामिल करें. अगर एआई ने कोई ऐसे फंक्शन, ऐसा लाइब्रेरी यूज़ की है जो आपके नॉलेज में नहीं है, गो एंड एक्सप्लोर दैट फर्स्ट. बस उसे आपने ये नहीं कहना कि इट्स वर्किंग, एआई ने जनरेट कर दी है. गो एंड एक्सप्लोर दैट लाइब्रेरी, उसकी सिमेंटिक्स को समझें, उसकी लॉजिक्स को समझें, उसकी कैपेबिलिटीज़ को समझें, और उससे आपकी जो लर्निंग है वो काफ़ी फास्ट पेस भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगी. Thank you so much, sir. That is some very valuable insight. Anyone else having any question? Please raise your hands, unmute your mics, and ask the question. Hamza Nasir, you've asked a question in chat. Can you unmute your mic and ask your question? यस मैम. मैम आवाज़ आ रही मेरी? जी. मैम मेरा टेस्टिंग के हवाले से क्वेश्चन है कि एआई को टेस्टर किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी टेस्टिंग को बेहतर बनाने के लिए ऑटोमेशन में भी, और टेस्टिंग के लिए क्या रोड मैप है एआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए? ठीक है. सो हमजा, every part of SDLC रिक्वायरमेंट्स, कोड, उसकी टेस्टिंग, उसकी डिप्लॉयमेंट, एआई उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है. इन टेस्टिंग आपके पास अगर कोई रिक्वायरमेंट्स आती है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आया इन द फॉर्म ऑफ एसआरएस, और कोई यूज़ केस डॉक्यूमेंट आया है कि आप एक टूल, एक फीचर बिल्ड करना चाह रहे हैं, आपके उस डॉक्यूमेंट को यू कैन यूज़ द एआई टू राइट टेस्ट केसेस, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेटिव स्टेप बाय स्टेप टेस्ट केसेस लिख के दे देगा. एंड यू कैन गो अहेड एंड आस्क इट टू राइट अ स्क्रिप्ट, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट फॉर दोज टेस्ट केसेस एज वेल. इसके अलावा काफ़ी सारे विजुअल टेस्टिंग टूल्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें प्ले राइट है, कोडियम हमने यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर देखा था. यू कैन यूज़ दोज टूल्स, और you can ask those tools with to use AI and go and do exploratory testing. वो खुद using the help of AI वो context build करेंगे, and they go ahead और वो exploratory testing भी perform कर सकते हैं. And you can ask those tools to generate a smoke test case test suite for you as well. So you can automate those easily in the CI/CD pipelines or any other part of the code deployment. सर इसमें ओपन सोर्स अवेलेबल हैं टूल्स, जिस तरह आपने लेवल बताया डेवलपिंग के लिए कि हम प्रॉब्लम पास करते हैं और यूआई वगैरह डेवलप हो जाती है, उसके अकॉर्डिंगली इंग्लिश में हम कमांड पास करते हैं, तो इस तरह राइट. कोई कि इस तरह के ओपन सोर्स टूल भी अवेलेबल हैं. मैं भी एक्सप्लिसिटली मुझे नाम तो शायद उनके नहीं पता होंगे, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आई गेस देयर इज़ सम मैकेनिज्म जिसमें आप बाद में भी शायद इसका आंसर ले सकें. इस तरह मैकेनिज्म आई कैन प्रोवाइड टूल्स.
Yes, Assalamualaikum. Hamza, you can ask the question on the portal and we can provide you the answer on the portal. Yeah, that's good, I guess. And जी that ठीक है says, सर yeah, वो फ्यूचर वालों के बाद वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी. They can relate those answer. Okay, so the time's up. It's 10 o'clock. So we will conclude this session. अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल है, feel free to go to our portal. Links are mentioned below. And आप वहाँ जाके अपना question पूछें and we'll get you connected with Sir Zahid, inshallah. So concluding the session officially, thank you so much, sir, for such an insightful and inspiring session. आपने हमें दिखाया कि AI सिर्फ एक future concept नहीं है, बल्कि आज का tool है and it is making coding smarter and faster. And students, thank you so much for bringing your energy and curiosity. I hope this session से आपको नए ideas और real steps मिले होंगे to level up your software development journey. Stay connected with ETL because this is just the beginning. Or be expert-led sessions, mentorships, or growth opportunities are on the way for you. Feedback form or community के links chat में दे दिए गए हैं. Kindly fill the form. It helps us to grow and get your feedback. That is it from my side. Thank you so much. Sir Zahid, would you like to say something before concluding the session? Yeah, sure. I guess it's a great initiative. इस तरह के सेशंस का होना for students as well. They can easily connect with the industry and they can see कि इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त practically क्या चीज़ चल रही है. When we were students, so those gap was greater at that time. तो हमारे पास इंडस्ट्री की उस तरीके से अप्रोच नहीं थी एट दिस एरा. और ख़ास तौर पे जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ETL का प्लेटफॉर्म है, आप इससे इंडस्ट्री के साथ काफ़ी इजीली कोलैबोरेट कर सकते हैं और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा. और अगर आप फर्दर भी AI के हवाले से कि AI SDLC के अंदर किस तरीके से इनकॉर्पोरेट की जा रही है, हाउ इट इज़ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन टू 5x और 10x, आप बिट्सोल टेक्नोलॉजीज़ के लिंक्डइन के ऊपर जाके विज़िट करते रहें. वी आर होस्टिंग वेबिनार्स ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक एज वेल. उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि हाउ AI इज़ मेकिंग अ पर्सन हैव अ प्रोडक्टिविटी ऑफ 5x और 10x. Thank you so much, sir. That was really encouraging. And जैसा कि सर ने कहा that we have a lot of sessions in the pipeline and this is a great initiative for all of those who want to learn and grow. हमारे community links chat में है, feedback form chat में है. Please fill it out. Follow us on Instagram, LinkedIn and Facebook. Stay connected with our portal. And till the next webinar, Allah Hafiz everyone.